am Akash Kumar, your host for this special webinar on skill development and unconventional career opportunities and volunteer at Adore. So before starting, I want to give a brief introduction about Adore and its purpose. So Adore is a global organization empowering youth through volunteer-led interactive sessions like sunshine sessions, workshop, webinars, and skill development to inspire positive societal impact and personal development. So these are some happy faces of the webinars and sunshine sessions. And so now on behalf of Team Phoenix of Adobe, we are thrilled to welcome you to this webinar on skill development and unconventional career opportunity. So to make this session even more engaging, we kindly request everyone to switch on your cameras and turn off your mics, please. Mr. Menon stands as a towering figure in the realm of mentorship, serving as a guiding light to countless individuals across the globe. And with over a decade and half of experience as a seasoned trainer, his influence extends far beyond conventional boundaries. And recognized by the United Nations for his unwavering dedications to mentorship, Mr. Menon's impact transcends more accolades. His expertise has garnered him invitations to prestigious platforms such as the W20, where he has shared his insights as a speaker under the auspices of the G20. However, Mr. Menon's contributions are not confined to the realm of soft skills development. He has left an indelible mark on international political assessments and revolutionizing uh, paradigm and shaping the discourse. So, in today's rapidly evolving job market, staying competitive means continuously developing your skills. So, in this session, sir will explore essential skill development strategies and highlight emerging career opportunities. So, sir, we are honored to have you share your expertise with us today. We are eager to learn from you. So, without any delay, I will pass the virtual mic over to you, sir. Sir, the stage is all yours now. Great. All right. Good evening, ladies and gentlemen. I would request everyone to please go across and join their cameras so that I also know who am I talking to. And you should also know that while I go across and crack a joke or I crack a stupid joke, you can smile or not smile. I'll know that if in case you liked it or not. So that's very, very important because on an online session, since COVID, what has happened is we don't get to know that, how are you feeling about the evening, the morning, the noon, because सब कुछ बराबर लग रहा होता है because we're on the screen at this point in time. तो हमको नहीं पता कि बाहर सूरज निकला है कि नहीं निकला until unless we look at the clock. Now, the idea is very simple. I'd like to invite and warmly welcome everybody: Akash, Pradeep, Pujaswani, Prachi, Sri Lakshmi, Atharv, Raj, Akanksha, Kajal, Sanket, Shahid, Ishpreet, Isha, Pallavi, Priyadarshini, Saksham, Parimala, Khushi, Gautam, Lavisha, Rakshan. Thank you so much for joining in today in the evening. I mean, taking out these 40-45 minutes. You could have been doing anything else right now: Netflixing, binging, running across wherever you want to, going to the gym, chilling out with friends. But then we've come across to a realization that it is very, very important that other than the syllabus that we are working on, any syllabus, engineering, being a doctor, being a CA, other than that, it is highly important that we also look at the unconventional skill part as well. So let us take up a very simple understanding here. When we talk about unconventional skills, let's take a question in our head. Name that one particular career that allows you recognition, allows you representation, and allows you enough amount of money that you don't need to think about when to spend, how much to spend, and wherever you're saving it or not. So it cannot happen only conventionally. Everybody these days are running a parallel income or a second income or a third income. Now let us understand, for example, Pradeep here or Akash here or Priyadarshini, all three of them are from the sciences background, assuming all of them are engineers. Once they finish their engineering, they move into MBA and they finish their masters in finance, HR, wherever. Other than that, Priyadarshini is the only one who has also gone across and picked up a parallel skill where she knows how to manage events. So she not only is an engineer, she not only is an MBA, but she's also an event coordinator, which means that on weekends, other than doing the college or the office based projects, she can go across and be somebody who's handling events
for large scale multinational corporations or for any other event based programs, which means that she has a second or a third source of income that she has. How exactly do you think she's achieved that? The reason behind achieving that is that she has gone through an understanding that skill building does not require conventionality or unconventionality. स्किल बिल्डिंग इज समथिंग जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का पार्ट होना चाहिए. इट इज नॉट दैट इफ इन केस मैं एक सिलेबस का पार्ट पढ़ रहा हूं तो मुझे उसी में ही एक्सपर्टीज गेन करना है. A lot of people I hear जिनके पास ऐसे लाइफ में डायलॉग्स होते हैं that I have a plan A and I don't have a plan B एंड आई डोंट बिलीव इन अ प्लान बी. बहुत अच्छी बात है, आप प्लान बी में नहीं बिलीव करते, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके. लेकिन प्लान ए होता है लोगों के पास, प्लान बी भी होता है और प्लान सी भी होता है, प्लान जेड तक होता है लोगों के पास. एंड इससे उस इंसान की क्रेडिबिलिटी कम नहीं हो रही है, मेरे हिसाब से तो उस इंसान की क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है, बिकॉज दैट इंडिविजुअल इज एबल टू क्रिएट प्लेटफॉर्म्स that allows him opportunities when one platform is not working for them. Let us take an example of a UPSC aspirant. अब एक यूपीएससी एस्पिरेंट अपना 2 साल 1.5 साल पढ़ाई लिखाई में झोंक रहा है और पढ़ाई लिखाई कर रहा है और एक एग्जाम देने जा रहा है जिसमें 15-20 लाख लोग एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं, जिसमें से रैंक निकल रही है कुछ हजार, जिसमें से रेकमेंड हो रहे हैं कुछ 100 लोग, और जिसमें से कुछ ही लोग रेकमेंड होने के बाद एक्चुअली एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन रहे हैं. तो जी बाकी लोगों ने एग्जाम जो दिया, क्या उन लोगों ने सिर्फ एग्जाम दिया था? जिन लोगों ने सिर्फ एग्जाम दिया था उन लोगों की स्टोरीज इंस्टाग्राम पे शायद आप कभी नहीं देखोगे, लेकिन ऐसे एस्पिरेंट जिन्होंने अपना प्लान ए बी सी बना रखा होगा. तो ये अनकन्वेंशनैलिटी है क्या? तो लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन, यू कैन रेज योर हैंड एंड आंसर. मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ कि मैं प्रेजेंटेशन आपको दिखाऊं, कोई पीपीटी बना के लाऊं. आई एम सॉरी, मैं उनमें से नहीं हूँ. आई डोंट बिलीव इन स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3, देन आई स्लाइड आउट ऑफ द स्लाइड एंड मीटिंग खत्म, थैंक यू सो मच, अपने अपने घर चले गए सारे. मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूँ. मैं अपने आप में बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन हूँ, मैं ही हूँ जोकर. मुझसे ही बात करो, जितना मुझसे मुझसे एंटरटेनमेंट ले सकते हो ले लो, बट प्लीज गेन द नॉलेज ऑफ वन सिंपल फैक्ट. Nobody, I repeat, no one out there is waiting to give you their own platform without a cost. वो अपना प्लेटफॉर्म आपके साथ शेयर नहीं करेंगे. Somebody who's an angel investor, वो उसी में इन्वेस्ट करेगा जिस प्लेटफॉर्म पे, जिस कंपनी में उसको बिलीव है. तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, यू कैन रेज योर हैंड एंड लेट मी नो, कितने लोगों को अनकन्वेंशनल टर्म का डेफिनेशन पता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म अनकन्वेंशनल? एनीबडी कैन रेज योर हैंड एंड आंसर. स्क्रीन पे रेज कर दो हैंड यार, क्योंकि सबने वीडियो तो ऑन कर नहीं रखा, तो मेरे को सबकी शक्लें दिख नहीं रही हैं. वैसे बहुत अनफेयर नहीं है that you can look at my face, I cannot look at your face. This is a little unfair. मतलब if I talk about the Indian Constitution, chapter number 3, article number 21, right to life and liberty, I mean with liberty I'm showing you my face right now in the evening, but you're not showing me your face. But कोई बात नहीं, I'm happy looking at Pradeep's face, प्राची's face, आकाश का शक्ल दिख रहा है मुझे, प्रियदर्शनी का फेस दिख रहा है, पूजस्विनी का फेस दिख रहा है मुझे. बाकी और किसी का मुझे खास कुछ दिख नहीं रहा. आई मीन ओके, आई हैव नॉट स्क्रॉल्ड द स्क्रीन, आई कुड सी शाहिद's face. थैंक यू सो मच शाहिद. यू नो, सो ठीक है, और आई कैन सी फ्यू फेसेस. आकाश, व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अनकन्वेंशनल? आकाश बता. Think, sir, something different from what is usual. समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज यूजुअल. ओके, तो मान लेते हैं आकाश कि आपको मैं एक जॉब देता हूं एज एन इंजीनियर, जहां पे आपको जाना है और एक इंजीनियरिंग फर्म को कंसल्ट करना है कि इंजीनियर्स हायर कैसे करें. ये एक अनकन्वेंशनल जॉब होगा कि कन्वेंशनल जॉब होगा? It would be kind of conventional and तो consumer. बट ऐसा तो जॉब बनाना पड़ता है. मतलब आकाश, मुझे और प्रदीप ने, मैंने प्रदीप ने कंपनी शुरू की और हमने कहा हमें इंजीनियर्स हायर करने हैं, हम दोनों के पास टाइम नहीं है. तो मैं आकाश को हायर करता हूँ जो कि आईआईटी से एक इंजीनियरिंग करके निकला हुआ लड़का है, वो जाके हायर करेगा इंजीनियर मुझे चाहिए. यार ये तो कोई जॉब ही नहीं है, ये कौन सी जॉब है? मेरे को आज तक पता था कि मूवीज में किसी हीरो हीरोइन को कास्ट करना है तो मुझे कास्टिंग डायरेक्टर चाहिए, मुझे तो इंजीनियरिंग डायरेक्टर चाहिए एक, जो जाके इंजीनियर को हायर करके लाए. तो मैंने तो ये जॉब क्रिएट की है. तो ये भी तो एक अनकन्वेंशनल जॉब हुआ जो कि कन्वेंशनल कोर्स में से निकल कर आया. जिसने इंजीनियरिंग की थी उसको मैंने एक अतरंगी नौकरी दे दी. अब ये जो अतरंगी अटपटी नौकरियां होती हैं जिनका प्रोफाइल का कुछ खास नाम नहीं होता, कोई क्लियर डेजिग्नेशन नहीं होती, तो एट द एंड ऑफ द डे अगर आप एक कंपनी के सीईओ से बात करो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, तुमको क्या लगता है वो सिर्फ एक ही टेंजेंट फॉलो कर रहे होते हैं? उनका एक ही काम होता है पूरे दिन में, ऑफिस जाओ और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का काम करो? नहीं भाई, उनको बाकी सारे काम भी करने पड़ते हैं, सेल्स, मार्केटिंग, सब कुछ करना. विच मीन्स दैट कन्वेंशनली कुछ चीजें हमने लर्न कर रखी हैं, उन कन्वेंशनल स्किल्स का तो एक वैल्यू है. But at the end of the day, the other section, the other unconventionality part is also something that we need to rule upon. तो अब अनकन्वेंशनैलिटी का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल आई आस्क दिस क्वेश्चन टू प्राची. प्राची, डू यू थिंक अनकन्वेंशनल स्किल्स का भी कोई ना कोई सिलेबस होता होगा कि सर ये सिलेबस पढ़ेंगे, इसमें से 2-3 ब्रांच निकाल लेंगे तो हमें एक अनकन्वेंशनल स्किल का आइडिया पता लग जाएगा, हाँ ऐसे काम किया जा सकता है.
So maybe नहीं तो एक मेरे को प्योर आंसर दो। प्रदीप आप बताओ, क्या कोई एक ऐसा सिलेबस सेट किया जा सकता है? फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्रामर्स की बात करते हैं, यूट्यूबर्स की बात करते हैं, पॉडकास्टर्स की बात करते हैं, लोगों को इंटरेक्शन करना शुरू कर दिया, तो इनका तो कोई सेट सिलेबस है ही नहीं ना। अब क्योंकि इनका कोई सेट सिलेबस नहीं है, तो पता है सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है अनकन्वेंशनल स्किल सेट्स का? इफ यू आर द हु स्टार्ट्स दिस स्किल सेट, आप इसका सिलेबस सेट कर सकते हो। You are the one who can set up the syllabus for this entire thing. Akash can be the first person who starts the industry, who starts the clear industry called Instagramming. He starts the entire industry called podcasting. आप किसी का भी एग्जांपल ले लो, कोई रैंक वन पॉडकास्टर यूट्यूबर, फॉर एग्जांपल अडोर है। अडोर भी तो अपना काम कर ही रहे हैं ना। अब अडोर के जो लोग थिंक टैंक होल्डर्स हैं, जो थिंकिंग करके ला रहे हैं आइडिया, उसका कोई सिलेबस तो नहीं है। आपने कहा ना आकाश, आप बहुत सारी चीजें करते हो, अडोर डज अ लॉट ऑफ, यू आर डूइंग दैट सो दैट द प्लेटफॉर्म इज अवेलेबल टू एवरीबडी, जो अपने अपने लेवल पे अपना अपना काम कर पाए। तो प्राची, इसका मैं सिलेबस तो सेट नहीं कर सकता हूँ। एट द एंड ऑफ द डे यू कैन डिसाइड व्हाट द किड रिक्वायर्स। दैट इज वेयर अनकन्वेंशनल स्किल्स बिकम्स अ रियलिटी। दैट्स द होल आइडिया। एम आई क्लियर विद दैट पॉइंट? तो एनीबडी एंड एवरीबडी हु फील्स दैट सर मैं एक कन्वेंशनल पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं कॉमर्स पढ़ रहा हूँ, आर्ट्स पढ़ रहा हूँ, ह्यूमैनिटीज पढ़ रहा हूँ, साइंस पढ़ रहा हूँ, मैथमेटिक्स अच्छा पढ़ रहा हूँ, फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, पढ़ो। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ना मेरा कोई मना करने से कोई फायदा होगा। तुमको मैथ्स पढ़नी है पढ़ो, मुझे नहीं पसंद मैथ्स, वो अलग बात है। बट तुमको मैथ्स पढ़नी है पढ़ो, बिंदास, जितनी पढ़नी पढ़ो, साइन थीटा कॉस थीटा चंद्रयान तक जाओ भाई, मेरे मेरे ब्लेसिंग से बिल्कुल जाओ। बट माई ओनली रिक्वेस्ट इज, other than the syllabus set that you're studying, you must have a couple of more options that allows you commercial gain, allows you the opportunity to earn bread and butter. आप ये मत एक्सपेक्ट करो प्राची, आकाश एंड एवरीबडी हुज ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, दैट एक सिलेबस जो मैं पढ़ रहा हूँ कन्वेंशनली मैं उसको पढ़ता हुआ आगे निकल जाऊंगा। एंड शाहिद, मान लेते हैं अगर आप एक सिलेबस पढ़ रहे हो और वो सिलेबस पढ़ते पढ़ते आप उसके टॉप लेवल तक पहुंच जाते हो, तो उस टॉप लेवल के बाद शाहिद क्या बचा? आप उसको सिखा ही सकते हो ना शाहिद, एट द एंड ऑफ द डे आप और कुछ तो नहीं कर सकते। तो उसके अंदर से जब आपको एक और ब्रांच निकालना पड़ेगा शाहिद, तो उसी को रिस्क टेकिंग कहा जाता है। और वो रिस्क टेकिंग वहां पहुंचने के बाद करने के बजाय अगर शुरू से करना शुरू करोगे, तो यू विल बी एबल टू क्रिएट मोर ब्रांचिंग आउट फॉर यू एट द एंड ऑफ द डे। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू प्रीच हियर। एम आई क्लियर विद दिस पॉइंट? ठीक है। बट एक बहुत बड़ा सवाल उठता है हर बार जब एक इंसान अपनी खुद की राह चुनने की कोशिश करता है। लेट्स टॉक सम डायलॉग्स। आई वॉक द पाथ दैट मोस्ट डिड नॉट, so when I walk the path most did not, there is a chance of me failing. It's a fact. Akash, Prachi, it's a fact. If I'm walking a path created by myself, उसमें मैं फेल हो सकता हूँ, ये बात सही है। Yes, sir. तो ऐसा कौन गारंटी करता है कि जो पाथ ऑलरेडी क्रिएटेड है उसमें तुम फेल नहीं हो सकते? ऐसा किसने कहा कि अगर इंजीनियर बनने गए तो तुम टॉप नॉच इंजीनियर बन ही जाओगे या डॉक्टर बन ही जाओगे? अब डॉक्टरों की तो बात मैं ना ही करूं नीट के एग्जाम के बाद, फिलहाल उस रास्ते ना ही जाए तो विवाद हो जाएगा, फिर तो उस बारे में बात नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा कि अब एग्जामिनेशन में भी और नीट जैसे एग्जाम में क्या क्या हो रहा है। तो कोई बात नहीं, मैं कोई स्टेक होल्डर नहीं हूँ, ना पॉलिटिशियन हूँ, मैं एक एकेडमिशियन हूँ। एकेडमिशियन ये बोल सकता हूँ, मेरे पास 15 किस्म की अलग अलग अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 15 किस्म की अपॉर्चुनिटीज में अपना 100% देना है। 100% आप नहीं दे सकते सब में, लेकिन ये किसी मना नहीं किया कि 20% किसी चीज में दो और उसमें से 80% गेन नहीं ले सकते। आप बिल्कुल ले सकते हो, 100% ले सकते हो। You don't need to go to a 5 star and enjoy a butter chicken. You can go to a dhaba and enjoy butter chicken. It will eventually taste almost the same. थोड़ा एम्बियंस नहीं होगा, एसी नहीं होगा, महंगी कुर्सियां नहीं होंगी, और एक शेफ आके पूछेगा नहीं हाउ डिड यू लाइक योर डिनर, भैया डिनर हमारा अच्छा था। अब ये पूछने के 800 रुपए ले रहे हो, कोई नहीं मैं 200 रुपए में खा लूंगा बटर चिकन। इट्स द एक्सपीरियंस दैट यू अर्न एट द एंड ऑफ द डे। फॉर दैट एक्सपीरियंस ओनली एक स्किल अर्न करना ज्यादा जरूरी है, 4 स्किल्स अर्न करना ज्यादा जरूरी है। एंड अगेन, a lot of times we have a large scale passion running across with us as well. वो लार्ज स्केल पैशन जब हमारे साथ रन कर रहा होता है, उस पैशनेट रनिंग में भी हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें किन के साथ नेटवर्क करना पड़ेगा। एक बात का ध्यान रखना, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। आप जो अपना नेटवर्क क्रिएट करते हो ना, वही आपका नेटवर्थ होता है। आज के दिन आकाश जब मेरा सेशन खत्म करेगा और कुछ दिन बाद आकाश मुझे बोलता है सर आई हैव अ डाउट, आई वांट टू सिट विथ यू बिकॉज आप ट्रेनिंग देते हो लोगों को, आई ट्रेन फॉर सिविल सर्विसेज, आई ट्रेन फॉर मैनेजमेंट, यू कैन गो एंड गूगल मी, यू विल सी व्हाट ऑल डू आई डू। गूगल किसी को भी सर्च इंजन पे तब तक नहीं डालता जब तक और भी लोग उसके बारे में नहीं डाल रहे होते हैं। तो यूएन अवार्ड नहीं देगा एक रैंडम इंसान को। तो इफ आकाश कम्स टू मी, प्राची कम्स कि सर मैं ये पढ़ रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं 3 करियर लाइन चूज करना चाह रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं कैसे चूज करूँ, आई रिमेंबर प्राची एंड आकाश फ्रॉम दिस सेशन। I will remember, okay, ठीक है, they had interacted and I would like to take this call from Prachi and Akash.
दैट्स द नेटवर्क आई एम टॉकिंग अबाउट. दैट इज योर नेटवर्थ एट द एंड ऑफ द डे. ये पॉइंट क्लियर है आप सबको? ठीक है. अनकन्वेंशनल कंटेंट का कोई स्कीमेटिक नहीं होता है. शाहिद कैन गो अक्रॉस एंड पुट वॉट एवर कॉन्टेंट ही वॉन्ट्स इन लाइफ. द मोमेंट पीपल स्टार्ट लाइकिंग इट, बात खत्म. उसके बाद शाहिद को यूज किया जाएगा. शाहिद मान लेते हैं शाहिद कंटेंट बना रहा है अबाउट डांसिंग एंड शाहिद बिकम्स पॉपुलर. उसके बाद शाहिद से ही शैम्पू बिकवाएंगे कि शाहिद जी थैंक यू सो मच, आपका डांस वीडियो चल पड़ा, आप आके हमारे लिए शैम्पू भेज दीजिए बिकॉज आपकी वीडियो लोग देखते हैं. दैट्स कॉल्ड अनकन्वेंशनैलिटी. शाहिद स्माइल टेल्स मी अ लॉट दैट दैट्स कॉल्ड अनकन्वेंशनैलिटी. अथर्व को अगर मैं बोलता हूँ, अथर्व प्लीज गो अक्रॉस एंड स्टार्ट टीचिंग मैथ्स टू पीपल, एंड अथर्व बिकम्स मैथ्स वाला, and at the end of the day maths wala starts talking about elections. So that is how popularity recognition comes in. But ये तुम समझ रहे हो, anybody who is बहुत ज्यादा successful ना is somebody who's taken the unconventional path. आप किसी का भी नाम ले लो, बड़े बड़े नाम लेने, मार्क जकरबर्ग, बिल गेट्स, कोई कॉलेज नहीं खत्म किया है. उनको लगा हम अपना काम खुद ही कर लेंगे. बहुत लोगों ने कॉलेज खत्म किया है एंड देन दे हैव गॉन अक्रॉस. मैंने अपना कॉलेज पॉलिटिकल साइंस और आईआर में खत्म किया है. फिर मैं बैंकिंग इंडस्ट्री में चला गया एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, और वहां से मैं अपना करियर मोड़ के यहाँ पे ले आया. तो इट मीन्स कि मैंने अपना इंटरेस्ट एरिया नहीं छोड़ा. ऐसा हो सकता है कि अथर्व का इंटरेस्ट एरिया इज ट्रेडिंग, और अथर्व का इंटरेस्ट एरिया इज इनटू स्प्रिंट रनिंग और इनटू मैराथन रनिंग, एंड अथर्व लीव्स दैट बिकॉज ऑफ सम रीजंस. अथर्व शुड नेवर डू दैट. Who knows, Atharv goes across and competes somewhere and he gets selected. Guys, it is just about a good day, a good moment, a good month, a good year, and a good set of eyes to look at you to recruit you in the. That's how life works. And that is what you need to be looking forward towards. चलो कुछ questions लेते हैं. Anybody who is very confused about this so-called risk-taking life or the path that we can choose, और सर ये unconventional चीज़ों को समझें कैसे, और हमें permission नहीं मिलती, घर वाले डरते हैं इस बात से, वगैरह वगैरह वगैरह. Let's take some doubts, then I will move ahead. बताओ जिसको doubt है वो hand raise करें एक बार. 1 second. But I would like to adore you more if in case you can switch on your cameras. Akash, बता भाई doubt पूछ. Sir, I have cleared CAT this year and going to join soon a B school, that is IM Trichy for HR. But the problem is my family comes under BPL category, so the loan is very high, around 18, 20 lakh. All the bank will give me loan very easily. They are connecting with me to with loan. But the risk is अगर मैं सक्सेस नहीं हुआ तो कैसे फिर करूंगा. आकाश, I am कोझिकोड की बात कर रहा है क्या? तिरछी तिरछी सर. है ना, I am कोझिकोड बोला ना तूने? तिरुचिपल्ली सर, तिरछी. तिरुचिपल्ली. अच्छा ठीक है, तो तूने कैट क्लियर किया, तेरे को एमबीए, तू एमबीए करने जा रहा है ना एचआर में? ठीक है. अब आकाश एक मेरी बात समझ. मान लेते हैं कि तूने कैट नहीं क्लियर किया होता और तेरे को एक 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 बहुत ही नॉट द आईएम बी स्कूल मिल गया होता. वो नॉट द आईएम बी स्कूल की फीस भी तो कम से कम 8-10 लाख रुपए होती. उसके लिए भी एक लोन लेना पड़ता. यस सर. उसमें भी तो रिस्क होता. तो आकाश तू 18 लाख का लोन ले या तू 18 करोड़ का लोन ले. एंड आकाश, आप अगर बीपीएल कैटेगरी में आते हो, विच इज बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हो, या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हो, या आपको असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, बट आकाश तू ये भी तो देख, तूने कैट इतना अच्छे से क्लियर किया है कि तेरे को एक आईएम मिल रहा है और बैंक का इंटरेस्ट सारा वहीं गेन हो रहा है कि आपके पास आईआईएम एज अ कॉलेज है. विच मीन्स दे नो दैट तू आईआईएम से जब निकलेगा ग्रेजुएट होके 2 साल बाद, तो तेरा पे पैकेज कहीं नहीं तो कम से कम जो तू लोन ले रहा है उतना तो होगा ही होगा, या उससे थोड़ा सा ज्यादा ही होगा. सो दैट इज द ट्रस्ट दैट दे हैव इन यू. अब बेटा आकाश, रिस्क का तो गेम ये भी है कि हम पे छत गिर सकती है अभी के अभी. हो सकता है आईएम तिरुचिपल्ली बंद हो जाए. हो सकता है कैट वाले बोले कि हम भी नीट की तरह दोबारा एग्जाम लेंगे, सब लोगों ने गलत पेपर दिया है. अब आकाश, ये तो रिस्क मिटिगेशन नहीं है, ये तो इफ और बट पे खेल रहे हो आकाश. आप एक चीज का ध्यान रखना आकाश, बस अगर कॉलेज जा रहे हो और एमबीए पढ़ रहे हो तो अपने आप को दुनिया से कट ऑफ करके एमबीए मत पढ़ना. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करोगे, एक कंपनी इंसान से ज्यादा उसकी पर्सनैलिटी को पैसे दे रहा होता है. I am from Standard Chartered. I have also done. I also cracked my CAT examination. I also got through top B schools and I got through Standard Chartered Banking. Investment banker हूँ मैं by profession. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक बहुत बड़ा प्रोफाइल होता है जहाँ पे मर्जर्स में मैं काम कर रहा यस था. सर. आई वाज हैंडलिंग अकाउंट फॉर रणबीर कपूर, रणदीप हुडा, मर्जर्स विद नाइकी एंड ऑल दैट. मेरा काम इनको अच्छा लगे तो वो रिस्क लेना पड़ता है आकाश. बट एक चीज मैं बिल्कुल समझाऊंगा, वाइल यू आर स्टडिंग एमबीए इन एचआर, प्लीज अपने आप को मार्केट अपडेटेड रखना कि क्या मार्केट में जिस किस्म की जॉब्स चल रही हैं, क्या वो एचआर के अलावा कोई और स्किल मांग रहे हैं. अगर मांग रहे हैं
तो मुझे वो स्किल्स भी साइड बाय साइड लर्न करते रहनी चाहिए, बी इट कम्युनिकेशन, फाइनेंस, ट्रेडिंग, और जैसे भी उसको आप गेन कर पा रहे हो। बिकॉज एक सिंगल सीवी पे मत चलना कि जी मैंने इतना कर लिया तो मुझे इतना मिल जाना चाहिए। और ये रिस्क वाली बात, रिस्क का तो कोई एंड है नहीं आकाश। तो मैं इसका आपको कोई रामबाण तरीका नहीं दे सकता हूँ कि जी रिस्क खत्म हो जाए और आपको IIM वाले अभी एक स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दें कि आकाश आओ बेटा, पूजा की थाल तुम्हारे लिए तैयार है, कि तुम्हारी नौकरी पक्की है, तुम टेंशन मत लो, लोन ले लो। ऐसा कोई नहीं करके देगा आकाश। You will have to prove it to them while in college that you are somebody who's recruitable, आकाश। एक इंसान recruitable तब होता है जब इंसान approachable होता है, and that's what you need to work upon. That is all. Okay, all right, सोचो और कोई क्वेश्चन है तो। anybody else with a question, concern, बात कर लो यार। Please, it is not one of those sessions where I'm going to come and keep talking. I would like you to tell me something that is troubling you. Please look at my profile. I'm an academic specialist. There is nothing under the sun regarding padhai, likhai, recruitment, jobs in India, abroad, which I will not be able to help you with. Prachi, go ahead. सर एक्चुअली आई एम गिविंग कैट इन 2024। मैंने इसके पहले अभी नहीं दिया है, तो लाइक आई हैव गैप ऑफ 2 इयर्स। लाइक मेरा गैप हो रहा है 2 इयर्स का, तो मुझे ऐसे क्या कोर्सेज करने चाहिए सो आई कैन इम्प्रूव माई प्रोफाइल। तीन इट्स कोर्सेज, आई एम टेकिंग रिस्क। ठीक है प्राची, देखो 3 कोर्सेज हैं। आपने अब कोई भी पढ़ाई कर रखी हो, क्योंकि अब आप कैट का एग्जाम देने जा रहे हो, तो उनको सिर्फ इसी बात से मतलब है कि कैट में आपकी परसेंटाइल आनी चाहिए। ये बात आकाश बहुत अच्छे से समझता होगा। जो मर्जी पढ़कर आ जाओ, कैट में अगर आ गए नंबर तो ये समझ लो कि आपकी हो गई एंट्री इन अ टॉप 20 स्कूल, बात खत्म हो जाती है वहीं पे। वो और कुछ नहीं देखते। तो 3 ऐसे कोर्सेज जो आपको 100% करने चाहिए। पहला, यू शुड ऑलवेज मेक श्योर कि इंटरनेशनल फाइनेंस का कोई ना कोई कोर्स आप जरूर करो, ऑनलाइन या ऑफलाइन। यूजुअली ऑफलाइन नहीं मिलेगा, ऑनलाइन मिल जाएंगे आपको। तो इंटरनेशनल फाइनेंस विच टॉक्स अबाउट फॉरेक्स, मर्जर, कंपनीज कैसे काम करती हैं, वगैरह वगैरह। दूसरा, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर कॉन्स्टेंटली इंप्रूविंग वन थिंग विच इज योर कम्युनिकेशन स्किल्स। यू शुड नो, यस सर। मॉक इंटरव्यूज देते रहो, इंटरव्यू ट्रेनिंग लेते रहो, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए अलग अलग इवेंट कॉम्पिटिशन्स का पार्ट बने रहो, ताकि जब आप बैठो किसी के साथ इंटरव्यू के लिए। मैं आकाश को भी सजेस्ट करने वाला था, एंड आई एम श्योर आकाश इस बात को बहुत अच्छे से समझता होगा कि आकाश को कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी इंप्रूव करने की जरूरत है। इट्स नॉट दैट आकाश अच्छे से बोलता नहीं है, लेकिन आकाश प्रोनाउंसिएशन में कभी कभी कहीं कहीं गड़बड़ करता है, विच आकाश वेरी क्लियरली नोज कि हाँ सर मेरी प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे होती है। और जो इंसान अपनी कमी जानता है ना, उस इंसान में एक्सेस कोई कमी होती नहीं है। पार्ट पहला हो गया इंटरनेशनल फाइनेंस, दूसरा कम्युनिकेशन। तीसरा प्राची, प्लीज स्टार्ट डूइंग स्मॉल स्केल इंटर्नशिप्स विथ वेरियस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंपनीज। कोई भी, कोई सोशल वर्किंग कंपनी हो, कोई मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हो, बी इट अ पेड इंटर्नशिप और अनपेड। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक इंटर्नशिप करने का फायदा है, जो इंसान जब आपके साथ इंटरव्यू के लिए बैठेगा उसको इस बात का भरोसा होगा कि प्राची पे भरोसा बाकी कंपनीज ने भी किया है। भले ही 3 महीने का इंटर्नशिप हो, 4 महीने का हो, 5 महीने का हो, लेकिन इंटर्नशिप किया है प्राची ने। फॉर एग्जाम्पल अडोर के साथ आप काम कर रहे हो प्राची, यस सर। गुड। तो अडोर की तरह ही और भी एनजीओज हैं, क्लैप है, रेड क्रॉस है, यूएन वॉलंटियरशिप है। ये सब चीजें एक इंसान का प्रोफाइल बनाती हैं कि भैया ये 20-21 साल का इंसान है जिस पर मैं भरोसा कर। ये 3 चीजें हैं प्राची जो साथ साथ हर इंसान को करनी चाहिए वाइल देयर एंटरिंग इनटू अ मास्टर्स सिस्टम। क्लियर? यस यस सर, थैंक यू सर। यस, ईशा गर्ग, ईशा गो अहेड। Yeah, so sir, basically, one of my friend have pursue MBA from MIT University online. Okay, but the thing is also she is matlab she have done so many internships which are unpaid. So also she have experience in 4 to 5 internships. But the thing is whenever she wants to apply for a job particularly, they want experience from office, from a proper organization, right? from a not from a proper organization. We can say from office work. हाँ बेटा, तो द काइंड ऑफ एमबीए यू आर गोइंग टू डू, फॉर एग्जांपल अगर Yeah. आकाश एमबीए एचआर करने जा रहा है तो उसको Hmm. इंटर्नशिप भी एचआर बेस्ड ढूंढनी चाहिए। अगर प्राची एमबीए फाइनेंस करने जा रही है तो मैंने क्या बोला, इंटर्नशिप वो ढूंढो जिस इंटर्नशिप में आप ऑलरेडी इंक्लाइंड हो। तो ईशा, आपके अगर पहली बात तो अगर आपके फ्रेंड ने एमिटी से एमबीए ऑनलाइन किया है, ऑलरेडी उस एमबीए की वैल्यू कम होगी बेटा, ये बात आप समझ सकते Yeah, हो। that's why. करेक्ट। तो एमिटी, एक तो एमिटी वन, इट्स नॉट अबाउट द प्राइवेट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं जहाँ पे ढंग से पढ़ाई कराई जाती है। मैं बिल्कुल कुछ किसी कॉलेज को कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप ऑनलाइन करोगे एमबीए जैसा कोर्स, एमबीए समझ रहे हो आप, एमबीए इज मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बिजनेस प्योरली धंधा बेसिकली, यू नो, यू टू गो एंड इंटरेक्ट एंड नेगोशिएट विद पीपल।
मैं आकाश का हाथ मिलाए बिना उसको रिक्रूट नहीं करूंगा लाइफ में कभी। मैं प्राची का हाथ मिलाए बिना उसको कभी नहीं डिसाइड करके दूंगा कि प्राची आप इस बिजनेस को कर पाओगे नहीं कर पाओगे। आई हैव टू मीट द पर्सन। Yeah, exactly. that becomes a concern. So इसीलिए उनको बोला जा रहा है कि बेटा अगर आपने एमबीए भी ऑनलाइन कर लिया, आपने इंटर्नशिप भी कर ली, लेकिन आपने अपने कोर्स में इंटर्नशिप नहीं की, तो फिर मैं भरोसा कैसे करूं ईशा इस बात पे कि आपको जो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा आप वो हैंडल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। यू गेट माई पॉइंट? Yeah, I am getting your point, but sir, she have done the internships in the same domain. Like she have done in HR, मतलब MBA in HR, and the internships also in HR. So then what is the concern that the offices that the other company is having is because they're not internship from offices? Yeah, basically What? because all the things, education and experience, all is from work from home, we can Oh, say. then that's a problem, Isha. Yeah. Now, please understand that while the COVID section was going on, people were still making sure that office एक बार जा रहे थे वो लोग. So your friend will have to go across and pick it by choice. कि ठीक है मैंने कुछ work from home कर लिया, but for example, Ishpreet is also sitting on the screen right now, and I'm sure Adore members know Ishpreet is a part of my team. Ishpreet is working with a multinational corporation by the name of Bain and Company, which is in Cyber Hub. Ishpreet का भी office profile work from home भी है, but it's not only from work from home. So which means that he has to go to the office. So in case you want to showcase credibility to people, आपको office based काम करना पड़ेगा. There is no other way about it. That's the reason ये अटक रही है बात यहाँ पे. Sir, but in some cases, it won't be possible. Like some women's or some women's, or we can say some other problems that they can't go for office. They need work from I home. understand, Isha, but the company is not going to think about that. एक कंपनी विज अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कंपनी वो सिर्फ प्रॉफिट देखता है बेटा. वो ये नहीं देखता कि आपकी क्या तकलीफें परेशानियां हैं. फॉर एग्जांपल इफ अ वुमन इज प्रेग्नेंट एंड शी Yeah, नीड्स that. टू स्टे एट होम, सो उसको मटर्निटी लीव मिलती है. पर इसका Hmm. मतलब ये नहीं है कि उनके पास उनके डिपार्टमेंट का अगर कोई काम होगा तो उनको कॉल नहीं जाएगा. उनको कॉल जाएगा ईशा कि मैम आपके डिपार्टमेंट का काम था, ये बता दीजिए ये कैसे कैसे. ऐसा नहीं कि आप 6 महीने मटर्निटी लीव, और आजकल इंडिया में पैटर्निटी लीव भी आ गया है, बट दैट डज नॉट मीन कि आपका काम रुक जाता है. सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट. सो वो वहीं पर रहेगा सेम. Okay, thank you so much, sir. नथिंग. ओके. Sir, my name is Saksham. हाय You सक्षम make सर. sure that when you take a career, like you feel that you have to go with it, like your future depends on it. So like, how do you make sure that yeah, this is the thing that you were waiting for, and ठीक है. गुड क्वेश्चन सक्षम, गुड क्वेश्चन सक्षम. देखो बहुत सिंपल है. आई विल से इट आउट लाउड. सक्षम, द प्रिंसिपल इज अ 3C प्रिंसिपल. C1, C2, C3. ठीक है. C1 stands for college, C2 stands for course, C3 stands for career. सबसे जरूरी कमिटमेंट हमारे लिए होता है कोर्स, क्योंकि हम जब ग्रेजुएट हो रहे होते हैं तो 4 साल 3 साल 5 साल जो भी है हम अपने कोर्स के साथ कमिट हो रहे हैं सक्षम. जब मैं अपना कोर्स ही गलत चूज कर रहा हूं इस चक्कर में कि मुझे एक बहुत फेमस या पॉपुलर कॉलेज मिल जाएगा, या मुझे एक अतरंगी कोर्स लेना चाहिए जिसमें से मुझे करियर पक्का मिल जाएगा. करियर की गारंटी नहीं होती है सक्षम, बिकॉज हर साल मार्केट के रिक्रूटर और उनकी डिमांड और आपसे वो क्या चाहते हैं ये बदल रहा होता है सक्षम हर साल. तो आपको आपका कोर्स ऐसा चूज करना पड़ेगा सक्षम जिसके अंदर आप सबसे ज्यादा फ्लरिश कर सकते हो. So you will have to be very, very careful that if in case I'm picking up a course in physics, maths, economics, engineering, being a doctor, being a nurse, being a cricketer, being a footballer, मैं क्या उसको आगे तक लेके जा सकता हूँ. वो कोर्स चूज करना is the very important decision. Most kids what they do is वो दिल्ली यूनिवर्सिटी चूज करते हैं नॉर्थ कैंपस के चक्कर में कि जी हमको नॉर्थ कैंपस जाने को मिलेगा तो मैं डीयू में कुछ भी कोर्स ले लेता हूँ, इंग्लिश ऑनर्स ले लेता हूँ, जबकि मुझे इंग्लिश पढ़नी भी नहीं है, जर्नलिज्म मुझे करनी भी नहीं है, मुझे स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं करनी, मुझे कंटेंट राइटिंग नहीं करना, लेकिन मैं ले रहा हूँ क्यों, नॉर्थ कैंपस मिल रहा है. मेरे को एसआरसीसी जाना है क्यों, क्योंकि मुझे एसआरसीसी जाना है, मेरे को टैग मिल जाएगा, जबकि मुझे अकाउंटेंसी नहीं आती पर मैं बीकॉम ऑनर्स ले लेता हूँ. इकोनॉमिक्स मेरी अच्छी नहीं है, नंबर आ गए मेरे इकोनॉमिक्स में. द पॉइंट इज सक्षम ये डिफरेंस शुरू से होना चाहिए कि बेटा नंबर किस चीज में अच्छे आ रहे हैं और आप एक्चुअली हो किस चीज में अच्छे. For that, Saksham, you will have to sit down and understand these 3 patterns: the college, the course and the career. करियर हम लोगों को बार बार चेंज करने का मौका मिलता है सक्षम, लेकिन जो इनिशियली हमारा पेडिग्री बनती है ना सक्षम, स्कूल के बाद 12th के बाद, वो 12th के बाद वाली पेडिग्री बहुत जरूरी होती है कि हम किस सब्जेक्ट में आगे, और अगर हम उस सब्जेक्ट में गलत आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, हमारा 3-4 साल हमने कुछ फ्लरिश नहीं कर पाएंगे, तो सक्षम हमारा ब्रेन भी तो मसल मेमोरी क्रिएट कर रहा है ना कि मेरे को तो यही चीज अंडरस्टैंडिंग में आ रही है. अब मैं क्रिकेटर को बोलता हूँ जिसने कम से कम 10 साल क्रिकेट खेला है,
कमिट कर दे क्रिकेट को 10 साल, अब वो बोल रहा है मेरा इंडियन टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मुझे अब कुछ और करना है. For that person, he will have to start from the age of 25, 26 years of age and start again studying BA, MBA, whatever it is. It is difficult for that person, Saksham, क्योंकि आपको recommit करना पड़ेगा to the entire system. यहाँ पे Saksham, that is where the decision making comes into picture. For example, Saksham, आप क्या पढ़ रहे हो? So I've completed my bachelor's in technology BTech from CSE, and now I'll be pursuing MBA. Computer science कहाँ से पढ़ा है? So JNU, Jawaharlal Nehru University S. Computer science from JNU. Yes, sir. Okay. Is this an engineering setup or a theoretical setup? So engineering setup. Okay. Actually, it's new. It's from 2018. It has started. Yeah, okay. I was a bit confused. No, I'm aware of it, but I was a bit confused that does it have the same aspects as IIT and DTU as such? Okay, great. And now you're moving into MBA. Yes. MBA in which field? So I haven't selected as such, but yeah, first I'll look in my first term, then College मिल गया? based on my interest. Yes, sir. College कौन सा college है? So, I am Indore. ठीक है. So which means that now MBA में आप जब मूव करोगे तो आप कंप्यूटर साइंस पढ़ के आ रहे हो, आप MBA करने जा रहे हो बिकॉज आप वही कॉम्बिनेशन बना के चल रहे हो जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को बड़ा अच्छा लगता है. अब आप इस बात को समझो, इस वक्त मार्केट जो बंदे फाइनेंस, इकोनॉमिक्स और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की दुनिया से हैं उनका बड़ा बोलबाला चल रहा है आजकल, you know, because India is opening up investments. So MBA in finance becomes the top choice usually. But Saksham, before you choose anything in MBA, be careful that आपका इंटरेस्ट एरिया कौन सा है और आप उसमें खुद फ्लरिश कर पाओगे या आपको डिपेंड करना पड़ेगा कॉलेज के ऊपर. ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा सक्षम. ये डिसीजन कहाँ से आएगा? ये डिसीजन आएगा फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस इन द कॉलेज, द इवेंट्स दैट यू हैव डन, द काइंड ऑफ कोर्सेज यू हैव डन पैरेलली, वगैरह वगैरह वगैरह. सो यहाँ पे कोर्स डिसीजन, क्योंकि अब आप तो ग्रेजुएशन कर चुके हो सक्षम. आइडियली इंजीनियरिंग करने के बाद यू कुड हैव जॉइंड अ कंपनी एज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर और ऐप डेवलपर, but you're choosing an MBA setup. So just be very careful what kind of MBA you want to move into, depending upon the fact that market क्या demand कर रहा है और आपका interest area क्या है. It should not only be market demand, it should not only be only interest area. It should be a mixture of both. Because आपका interest होगा किसी चीज में, लेकिन market इस वक्त उसमें कोई opportunity नहीं दे पा रहा है, तो कोई point नहीं है ना वो करने का. Smart और practical बनना पड़ता है, emotional angle हटाना पड़ेगा यहाँ थोड़ा सा. Okay, I'll move on to the last section here. One section that I wanted to discuss today, one very very simple section is career. Now, Saksham ने ये बात उठाई दी थी तो मैं इसको आगे ले जाता हूँ. When we talk about the concept called career as such, when we talk about, you know, हम अब इस, you know, we want to go into this career. Ladies and gentlemen, please, in today's generation, you know, please do not fixate yourself that मैं इसी career में जाना चाहती हूँ या चाहता हूँ. It should not only be one set of a career where you would want to move ahead. It is always okay that you keep yourself open to different career options. I am not asking you to get distracted. I am not asking you to get fundamentally bored by your own career. I am not asking you to do that. I am just telling you, keep your ears, keep your eyes, and keep your brain open to learning on a daily basis. 22 में नौकरी ज्वाइन की and they gave 10 years to the company. Now 33, 34 years क्या हो गए हो? 33, 34 years and 10 years of loyalty to a company into one profile. Beta, there is no going back. हो गया. 33-34 साल तक आपने एक तरह काम किया है. Now I want to change your entire field. Obviously, you will not be as competent as a Saksham Sahu who might be joining that company as a 23-year-old with that particular skill जो उस company को चाहिए. तो मैं 34-year-old पल्लवी को नहीं लूंगा, मैं 23-year-old सक्षम को लूंगा, बिकॉज सक्षम को मेरे को सैलरी भी कम देनी पड़ेगी और सक्षम मेरे पास अगले 10 साल के लिए वैलिड है. गेट माई पॉइंट? तो करियर बेसिस में इस बात का ध्यान रखा करो, क्या आप अपने आप को अपग्रेड, अपडेट और यूटिलिटी मैंडेट अपना बढ़ा के चल रहे हो. मैं रिपीट कर रहा हूं, अपग्रेड, अपडेट और यूटिलिटी मैंडेट बढ़ाओ. अपग्रेड कैसे करते हैं अपने आप को? बाय मेकिंग श्योर दैट व्हेन यू आर वर्किंग इन एन ऑफिस, कीप गोइंग अक्रॉस थ्रू दो स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम्स, ऑनलाइन ऑफलाइन जहां भी सीख सकते हो. अभी भी स्किल लर्निंग हम लोग भी कर रहे होते हैं. अपडेट योरसेल्फ विद अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट दैट अपडेट करना किस चीज में है. ऐप डेवलपमेंट में करना है, मार्केट डेवलपमेंट करना है, एचआर में, किस में डेवलप करना है अपने आप को. एंड थर्ड इज यूटिलिटी. क्या आपको लग रहा है कि आपका जैसा इंसान इज मोर यूजफुल इन अ डिफरेंट कंपनी, इन अ डिफरेंट जॉब रोल? सो गिव इट अ शॉट. अपने आप को बांध के मत रखो इस बात को लेके कि, फॉर एग्जांपल, मैंने जब जॉब शुरू किया था, मैंने HDFC के साथ काम शुरू किया था. मेरा काम था एज अ पर्सनल बैंकर टू हैंडल अ कपल ऑफ
पोर्टफोलियोज, छोटे पोर्टफोलियोज। मैं वो पोर्टफोलियो बहुत अच्छे से हैंडल कर पा रियलाइज बाय नॉट गिव इट अ शॉट एंड ट्राई समथिंग एल्स, देन आई अपग्रेड माई सेल्फ स्टैंडर्ड चार्टर्ड वेयर मर्जर्स आ गए मेरे पास। अब अगर मैंने अपने आप को सही टाइम पे, जब मैं 22-23 साल का था, अपने आप को मैंने अलग प्रोफाइल नहीं दी होती, तो बैंकिंग इंडस्ट्री मुझे मर्जर्स क्यों देता? क्योंकि मेरे पास तो सीखने का टाइम ही नहीं बचा। 22 साल के बंदे ने ज्वाइन किया, अब वो 32-33 का हो गया, बोल रहा है अब मुझे मर्जर्स दे दो। नहीं भैया, डोंट जंप योर करियर just to change your salary. Changing careers should also be in the opportunity of you actually being in control of your careers. I'll give you a very brilliant example. ठीक है, तुम सबके हाथ में पेन है? Do you have a pen in your hand? उठाना जरा, पेन अपने हाथ में उठाओ। मैं आपको I'll give you an example called resource utilization. आकाश, पेन उठाइयो। ठीक है, चल आकाश अपने आप को अनम्यूट कर ले एक बार। आकाश के थ्रू मैं सबको समझाता हूँ, ठीक है? आकाश, एक पेन का फंक्शन क्या होता है? तो पेन का फंक्शन लिखना हो गया, और पेन का ऑपरेशन क्या होता है फिर? अगर एक पेन का फंक्शन लिखना है आकाश, तो ऑपरेशन भी दिमाग में चलेगा, सर आई ऑपरेट अ पेन टू राइट एंड द फंक्शन ऑफ अ पेन इज टू राइट। बट आकाश, अगर मान लेते हैं मेरी तेरी स्कूल में लड़ाई हो जाती है और मेरे तेरे हाथ में अगर पेन है, तो मैं क्या पेन का तलवार समझ के तेरे आंख में डाल सकता हूँ पेन? So can I not use the pen as a sharp object to hurt Akash? The answer is yes, sir, I can. Yes, sir. Can I not use a bottle of water as a paperweight? अगर बहुत हवा चल रही है, मुझे पन्ने नहीं उड़ने देने, तो प्राची जी, क्या मैं उसको पानी की बोतल को पेपर पे रख सकता हूँ? जी बिल्कुल रख सकता हूँ। घर पे हमारी कुर्सियां बैठने के लिए होती है, लेकिन हम उनको दिवाली पे खड़े होकर पंखे भी साफ करते हैं। विच मीन्स मैं खुद एक रिसोर्स हूँ। आई एम अ ह्यूमन रिसोर्स। I should know how to manage all my skills properly. I should not only call myself a CA or an engineer. I should have other skills जो मैं अलग जगहों पे यूज कर पाऊँ. That's how it works. You yourself are a resource. हम अपने आप को लेजी बना के कई बार ऐसे पाथ चूज नहीं करते हैं जिनमें हम शायद फ्लरिश और कर पाएं। हमें लगता है कोई नहीं यार, एक जॉब मिल गई ना, एक करियर मिल गया, अब क्यों फालतू हाथ पैर मारना। बट क्यों फालतू हाथ पैर मारने वाले लोग ही होते हैं जो नौकरियां दे रहे होते हैं। इस बात पे कभी सोचना। Owners of the company, they did not have a clear career graph. They tried multiple things and finally landed up owning a company. Hanji, ab that's the reason they are able to give you a job. You are not the one giving jobs to anybody else. As a resource, as a career base, please have multiple options which you can try to build your skill into, so that you have a clear vision कि ठीक है सर, if in case for the first 5 years of my life this particular job does not work, मुझे उसमें पिस के जीने की जरूरत नहीं है, I can shift और स्किप टू द नेक्स्ट वन। है ना प्राची? मारियो का मशरूम तो नहीं है ना प्राची कि भैया मर गए दूसरा खा के आ गए, कि कोई बात नहीं, अब इंजीनियर नहीं तो सीए सही। ये एक ही जीवन में प्रिविलेज्ड बच्चे कर सकते हैं, जो अरबपति बच्चे होते हैं ना जी। आई वुड लाइक टू स्टार्ट पेंटिंग इन फ्रांस। नो, अब पेंटिंग में मजा नहीं आया, अब मैं चला ऑस्ट्रेलिया जाके मैं पायलट बनूंगा। ये भैया वो प्रिविलेज बच्चे कर सकते हैं, और वो आइडेंटिटी अपनी कभी नहीं बना पाएंगे, बिकॉज उनके आगे एक टाइटल लगता है और उस पर बहुत सारा पैसा होता है। तो हम वो लोग नहीं है। हम अपना एग्जाम देते हैं, हम लोन्स लेते हैं, पढ़ाई करते हैं अपनी। हम डर जाते हैं इस बात से कि क्या हमें करियर ऑप्शन ए बी रखना चाहिए? हाँ जी, रखना चाहिए। और क्या ये अनकन्वेंशनल करियर्स काम करते हैं? लेडीज एंड जेंटलमैन, अनकन्वेंशनल करियर्स ही काम कर रहे हैं इस वक्त। कोई भी बंदा एक नौकरी नहीं कर रहा है। आकाश भी इस बात को जानता है, प्राची भी इस बात को जानती है, सक्षम भी जानता है, शाहिद भी जानता है। एवरीबडी ऑन द स्क्रीन नोज नोबडी हैज वन सिंगल इनकम। मोस्ट पीपल हैव अ सेकंड और अ थर्ड इनकम गोइंग ऑन in whichever fashion they want. That's the unconventionality that everybody has to agree upon. Am I clear? ठीक है, ठीक है। अब किसी को कोई डाउट कंसर्न है तो पूछो। This is pretty much all that I wanted to talk to you guys about unconventionality, so on and so forth. किसी को कोई डाउट कंसर्न है तो मुझसे अभी भी पूछ सकता है। किसी को मुझसे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना है तो you can always get in touch with my team. You can always reach out to me if in case you have some personal issues, personal concerns that you are not able to discuss in front of everybody. I can understand सबके अपने personal concerns होते हैं and they're not able to talk in front of everybody. This is my Instagram, and I don't think I'm able to put message to anybody here. Can I put across a message on the group? This is my Instagram _Menon Rahul. You can also reach out to us on this particular website or Instagram, which is this is Instagram, then this is our website. So see guys, जरूरी नहीं होता है कि आप सबके सामने अपनी बात रख पाओ। हो सकता है कई बार आपको पर्सनली बात करनी पड़ती है। You can also take down the number of my team member
you can also reach out to them that, sir, we had some concerns, we want to skill up into management skill sets, so on and so forth. How do we do that? Where can we get better internships? Where can we get better jobs? Because my team members have reached Ivy League colleges, they have reached internships in Niti Aayog, World Bank, so on and so forth. The process kaise kaam karta hai is something I can help you with. Page and the setup that I have, so you can always reach on that. Implementers का Instagram है, implementers.in website है, नीचे नंबर लिखा हुआ है, ठीक है? Yes. Great. I think I will stop here. So thank you so much for having me, and thank you so much for listening to me and talking to me for whatever number of you did talk to me about. Thank you so much. कोई और doubt concern हो, you know where to reach out to me, how to reach out to me, and do let me know if in case is there anything else that I can guide you through it. So thank you so much and have a great day ahead. So as we are near the closing ceremony, before we depart, we would like to thank you, Menon sir, for this great webinar, and all the participants for making this webinar a success. And I will share a feedback link in the group, and I request to everyone to give your valuable feedback. So once again, thank you, sir, and everyone for joining. This webinar is now completed, and everyone can leave now. Thank you guys. Thank you Prachi. Thank you Akash. Thank you, sir. Thank you. Have a good night, Thank you, and please sir. reach out to us individually. I know a lot of you Yes, will. sir. So please do that. Don't shy away. No doubt is a stupid doubt. A doubt is a doubt, and if it is cleared, it is much better. Chalo, bye.